چھوٹی چڑیا جنگل میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے مما پاپا اس کے بچپن میں ہی کسی طوفان کے کارن گزر گئے تھے۔ وہ چھوٹی چڑیا بڑی مشکل سے گزارا کرتی تھی۔ جنگل میں بہت ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ اس بار چھوٹی چڑیا کے پاس شوز نہیں تھے۔ آج میرے پاؤں ٹھنڈ سے سن ہو رہے ہیں، لیکن میرے پاس تو شوز ہی نہیں ہیں۔ کون دے گا مجھے شوز؟ کون دے گا مجھے شوز؟ میرا تو اس جنگل میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اپنے مما پاپا کے دوستوں کے پاس جاتی ہوں۔ چھوٹی گڑیا گھر سے نکلتی ہے اور پڑوس میں رہنے والے کالو کوے کے گھر جاتی ہے۔ آنٹی آنٹی، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے شوز لے دیں۔ چھوٹی چڑیا، میں تمہیں شوز لے کے دوں گی، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کام؟ آنٹی کون سا کام بتائیں، میں آپ کا کام کر دوں گی۔ چھوٹی چڑیا بات سنو میری، یہ کلہاڑا اٹھاؤ اور مجھے سوکھی لکڑیوں کی ایک گانٹھ لا کر دو، پھر میں تمہارے پسند کے جوتے لے کے دوں گی۔ آنٹی آنٹی، میں ابھی جنگل سے جاتی ہوں اور سوکھی لکڑیاں لا کے دیتی ہوں۔ چھوٹی چڑیا کلہاڑا اٹھاتی ہے اور جنگل میں سوکھی لکڑیاں لینے چلے جاتی ہے، لیکن جنگل میں کوئی بھی سوکھا پیڑ نہیں تھا۔ چھوٹی چڑیا ایک پیڑ کے ڈال پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج میرے مما پاپا میرے پاس ہوتے تو مجھے ہر چیز لے کر دیتے۔ چھوٹی چڑیا درخت کی ڈال پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ وہاں پر ایک پکشی آتا ہے۔ چھوٹی چڑیا، کیا ہوا تمہیں؟ انکل، میں سوکھے پیڑ کی لکڑیاں لینے آئی تھی، لیکن یہاں پر تو کوئی سوکھی لکڑی ہی نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہی ہوں میں کیا کروں۔ چھوٹی چڑیا، یہاں سے سیدھا جاؤ، وہاں پہ ایک سوکھا پیڑ ہے، اس پیڑ سے جتنی چاہو لکڑیاں لے سکتی ہو۔ انکل، شکریہ آپ کا مجھے سیدھا رستہ بتانے کے لیے۔ گڑیا وہاں سے اڑتی ہے اور میدان کے پاس جاتی ہے۔ وہاں پر ایک بڑا اور سوکھا درخت تھا۔ گڑیا اس پیڑ سے سوکھی لکڑیاں کاٹنے لگتی ہے اور ایک گانٹھ گوری کوی کے پاس بنا کر لے آتی ہے۔ سنو چڑیا، یہ لکڑیاں تو کم ہے، تم ایسا کرنا، کل کو آنا اور مجھے اتنی ہی لکڑیاں دوبارہ لا کر دینا، پھر میں تمہیں لال رنگ کے شوز لے کے دوں گی۔ آنٹی، میں چھوٹی ہوں، آپ میری مشکل کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، میں نہیں لوں گی آپ سے شوز، میں جا رہی ہوں۔ گڑیا یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر گڑیا طوطے کے پاس جاتی ہے۔ انکل، میرے پاس شوز نہیں ہے، مجھے نئے شوز لے دیں۔ چڑیا، میرے پاس نئے شوز لینے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن میرے گھر میں میرے بیٹے کے پرانے شوز پڑے ہیں، میں تمہیں وہ لا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے انکل، وہ چلیں گے، آپ مجھے وہی لا دیں، میں نے تو ٹھنڈ سے بچنا ہے، کون سا فیشن کرنا ہے۔ طوطا اپنے گھر جاتا ہے اور بیٹے کے پرانے شوز لے کر واپس آتا ہے۔ ایک جوتا تو پوری طرح پھٹا ہوا تھا۔ وہ پرانے شوز دیکھ کر گڑیا نراش ہو جاتی ہے۔ انکل، یہ مجھے ٹھنڈ سے نہیں بچائیں گے، یہ تو پہننے کے قابل ہی نہیں ہے، اگر تھوڑے ٹھیک ہوتے تو میں اسے مرمت کروا لیتی۔ گڑیا اداس ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے اور ایک پیڑ پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ اگر میرے مما پاپا ہوتے تو وہ مجھے کبھی بھی ایسے رونے نہیں دیتے، وہ مجھے دوسرے بچوں کی طرح شوز لے کر دیتے، میرا کوئی نہیں ہے۔ چڑیا کو روتا ہوا دیکھ کر دوسرے پیڑ چڑیا سے کہتا ہے، گڑیا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے میں ہوں نا، میں آپ کو لے کے دوں گا نئے شوز۔ چڑیا، یہاں سے دور جنگل میں ایک پرانا کنواں ہے، اس کنویں کے پاس ایک پیڑ ہے، اس پیڑ سے ایک پتا توڑ کر جب تم کنویں میں پھینکو گی، جو مانگو گی تمہیں وہ کنواں دے گا۔ پھر چڑیا جلدی سے اڑتی ہے اور جنگل کے اس طرف جاتی ہے۔ شاید یہی وہ کنواں ہے اور اس کے پاس وہی پیڑ ہے جس کا پتا توڑ کر مجھے اس کنویں میں گرانا ہے۔ گڑیا اس پیڑ سے ایک پتا توڑتی ہے اور کنویں میں گرا دیتی ہے۔ کنویں سے آواز آتی ہے، چڑیا، کیا چاہیے تمہیں؟ میں تمہاری مدد کروں گا، تم جو بولو گی میں تمہیں وہی لے کے دوں گا۔ کنویں بھائی، مجھے شوز چاہیے۔ پھر کنویں سے ایک پیارے سے شوز آ جاتے ہیں۔
चिड़िया, ये लो, ये तुम्हारे लिए जादुई शूज़ हैं। तुम इन्हें जहाँ भी जाओगी ये तुम्हारी रिक्शा करेंगे। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उड़ने लग जाती है। जब वो आ ही रही थी तो गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू एक दरख्त की डाल पर बैठे हुए थे। जग्गू चिड़िया के पाँव में नए शूज़ देखकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे भी चिड़िया जैसे नए शूज़ चाहिए, मुझे भी वैसे ही शूज़ लेने हैं। रुको जग्गू, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे शूज़। ये कहकर गौरी कव्वी चिड़िया के पास आती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये शूज़ मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी, ये मेरे शूज़ हैं, मैं आपको नहीं दूंगी। ये बात सुनते ही गौरी कव्वी चिड़िया के पाँव से वो शूज़ निकाल लेती है। वो शूज़ जादुई शूज़ थे। वो गौरी कव्वी को मारने लग जाते हैं। गौरी कव्वी जान बचाकर भागती है। बचाओ बचाओ, मुझे मार रहे हैं, बचाओ चिड़िया। ऐसे ही गौरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू वहाँ से भाग जाते हैं। एक कम ऊंचे पेड़ पर मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मम्मा चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे थे। इन दोनों अंडों की रक्षा के लिए मम्मा दिन रात घोंसले में बैठी रहती थी। अब मम्मा चिड़िया बहुत डरी हुई रहती थी। एक नज़र मम्मा चिड़िया आसमान की तरफ रखती, क्योंकि उसे उस दुष्ट चील से डर था, और दूसरी तरफ वो दूसरी नज़र जंगल से आते हुए शिकारी पर रखती। सब ठीक है, मैं जल्दी से दाना ले आती हूँ। चिड़िया, तुम्हारे अंडों से तो बच्चे निकले ही नहीं। नहीं गौरी बहन, अभी कुछ दिन बाकी हैं। मैं सोच रही हूँ जैसे ही मेरे अंडों से बच्चे निकलेंगे मैं बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चले जाऊंगी। हाँ रानो चिड़िया, ये जंगल तो खतरों से भरा हुआ है। मैं और कालू भी दूसरे जंगल जा रहे हैं। सुना है कल चील ने बुलबुल के बच्चों को उठा कर ले गई है। गौरी कव्वी की ये बात सुनकर रानो चिड़िया और भी डर जाती है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे अकेले हैं। मम्मा चिड़िया अपना दाना खाकर वापस चली आती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि बैठे बैठे मम्मा चिड़िया की नज़र झाड़ियों में जाती है। वहाँ एक काली बिल्ली मम्मा चिड़िया को घूर घूर कर देख रही थी। इसकी कमी थी, ये भी आ गई। अब इन खतरों में मैं कैसे अकेली मुकाबला करूं? वो काली बिल्ली टहलती टहलती रानो चिड़िया के घोंसले के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। जाओ जाओ यहाँ से, मैं ऊपर से नहीं तो लकड़ी मारूंगी और टांग तोड़ दूंगी। म्याऊ। चिड़िया, इतना गुस्सा ना करो, मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे अंडों की रखवाली करूँगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारे अंडे कोई चील उठा कर ले जाए, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है, मैं इस दुष्ट कवि को, अपने दुश्मन को अपनी दोस्त नहीं बनाऊंगी। ये सोचते हुए रानो चिड़िया काली बिल्ली से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमसे कौन दोस्ती करना नहीं चाहेगा। तुम मेरे अंडों का ध्यान रखोगी, मैं तुम्हारा एहसानमंद होंगी। तुम्हारे अंडों से निकलने वाले बच्चों को मैं ही खाऊंगी। काली बिल्ली ऐसे सोचती है। मियाऊ मियाऊ। मैं जाती हूँ और मैं तुमसे मिलने रोज आ जाया करूँगी। मियाऊ। बिल्ली, मेरी सहेली, मुझे डर है कहीं ये चील मेरे अंडों को उठाकर न ले जाए, इसीलिए कल आते हुए मेरे लिए दाना ले आना। मियाऊ। मैंने दोस्ती की है, तुम ऐसी दोस्ती में ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं कर दूंगी। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए कल को आती हुई खाना भी ले आऊंगी। ये कहकर काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरे दिन काली बिल्ली इंसानों की बस्ती में जाती है। वहाँ से एक रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग जाती है। मियाऊ मियाऊ, मैं ले आई हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए रोटी का टुकड़ा ले आई हूँ। बिल्ली बहन, आप ये रोटी का टुकड़ा वहाँ पर रख दे, मैं उठा लूँगी। चिड़िया, मुझसे डर रही है, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वादा किया है तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने तक ख्याल रखूँगी मैं तुम्हारा। मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो अपनी सहेली को धोखा दूँगी। ऐसे ही
काली बिल्ली चिड़िया को लालच देती है। जब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलेंगे तो मैं ही मज़े से खाऊंगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन ऊंचे आसमान से एक चील नीचे मंडलाने लगती है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत डर जाती है। अब तो काली बिल्ली भी वहाँ मौजूद थी। काली बिल्ली बहन, इस चील को आप ही भगा सकती हैं। जब तक मेरे अंडों के पास आप हैं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। थोड़ी देर बाद वो चील नीचे आ जाती है। काली बिल्ली चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने अंडों की रखवाली करो, इस चील से मैं निपटती हूँ। काली बिल्ली दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। चील भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है और पास वाले पेड़ पर आकर बैठ जाती है। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सुनो बिल्ली, जैसे ही तुम इस चिड़िया के बच्चे खाना चाहती हो, ऐसे ही मैं इस चिड़िया के अंडे पीना चाहती हूँ। अगर मेरे पास आई, मुझे हाथ भी लगाया, तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर जब ही चील उड़ने लगती है, काली बिल्ली चील पर हमला कर देती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। फिर चील घायल होकर वहाँ से भाग जाती है। बिल्ली बहन, मुझे गर्व है कि मेरी सहेली तुम हो। अगर तुम आज ना होती तो मेरे अंडे ये चील कब की पी गई होती। मियाओ। चिड़िया, तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने में कितने दिन बाकी हैं? बिल्ली बहन, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हैं। इस दिनों के बाद मेरे बच्चे अंडों से निकल आएंगे। ठीक है, मैं फिर उस दिन ही आऊँगी। अपने बच्चों को बताना, तुम्हारी खाला बिल्ली भी रहती है यहाँ पर। 2 दिनों के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। चिड़िया अब अपने बच्चों को लेकर बहुत डरी हुई थी। वो जल्दी से अपने बच्चों का घोंसला उठाती है और दूसरे जंगल जाने की तैयारी कर लेती है। बिल्ली के आने से पहले पहले ही चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चले जाती है। आज मैं खाऊंगी चिड़िया के 2 नरम नरम बच्चे। आज मैं खाऊंगी चिड़िया के 2 नरम नरम बच्चे। मियाओ। बिल्ली जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर चिड़िया का घोंसला ही नहीं होता। इस बार तो चिड़िया भी मुझसे तेज निकली। ये मेरे आने से पहले ही अपने बच्चों को लेकर भाग गई। इसी तरीके से उस बिल्ली की चाल भी नाकाम हो जाती है और उसका मुंह धरा का धरा रह जाता है।